ڈاکٹر کی ضرورت ہے। اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کے حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 قسم کی اموات سے پناہ مانگی۔ نمبر 1، اچانک اور ناگہانی موت۔ نمبر 2، سانپ کے ڈسنے سے موت۔ نمبر 3، درندے کی چیر پھاڑ سے موت۔ نمبر 4، پانی میں ڈوب جانے سے موت۔ نمبر 5، جل جانے سے موت۔ نمبر 6، کسی چیز پر گرنے یا اس پر کسی چیز کے گر جانے سے موت۔ نمبر 7، میدان جہاد سے بھاگتے ہوئے موت۔ احمد بن حنبل 6594۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیمات سے مستحق عوام کو مستفید کرانے کے لیے فیلڈ عہدیدار حکومت کے رہنمائیانہ خطوط کی پابندی کرے اور مستحقین کو فائدہ پہنچائے۔ ضلع کلکٹر ہنمنت چھٹیاں ختم، چلو کام پر۔ سنکرانتی تہوار کی تعطیلات کا اختتام، طلبہ و ملازمین کا بسوں میں ہجوم۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی RTC کو خطیر آمدنی کا امکان۔ میونسپل کارپوریشن کارپوریٹرز کی میعاد 25 جنوری کو ختم۔ 18 جنوری کو کارپوریشن کا آخری اجلاس۔ فٹ پاتھ تاجران کو ماسٹر پلان یا سڑک کی توسیع کے بغیر موجود مقامات سے برخاست نہ کرنے اور ہر ڈویژن کو 20 لاکھ کی منظوری، قرارداد منظور کی جائے۔ MIM اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے مشورہ دیا کہ ریتو بھروسہ اندرما مکانات، راشن کارڈز اور اندرما آتمیہ بھروسہ فلاحی پروگراموں کے بارے میں عہدیداران فیلڈ سطح پر مکمل جانچ کریں، جسے حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ سے یوم جمہوریہ کے موقع پر نافذ کر رہی۔ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ گرام سبھا کے ذریعے اہل استفادہ کنندگان کی فہرست تیار کریں۔ شہر میں مربوط ضلع دفاتر کے احاطے سے ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے ایڈیشنل کلکٹرز، منڈل پریشد ڈیولپمنٹ آفیسرز، منڈل پنچایت افسران، منڈل ایگریکلچر آفیسرز، مختلف محکمے کے پنچایت سیکریٹریز اور ضلعی افسران کے ساتھ سرکاری فلاحی اسکیموں پر عمل آوری پر ٹیلی کانفرنس کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ ضلع کے ہر اہل خاندان کو فلاحی اسکیموں سے فائدہ پہنچایا جائے۔ عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ مستفید ہونے والوں کی فہرست تیار کرنے میں تال میل سے کام کریں۔ اس ماہ کی 16 سے 20 تاریخ تک فہرست بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے تجویز کی کہ اس ماہ کی 21 تاریخ سے ہونے والی گرام سبھا میں فہرست پیش کی جائے اور منظوری کے بعد اہل امیدواروں کی فہرست کلکٹر کے دفتر میں پیش کی جائے۔ اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیم کے تحت ایک اہل خاندان کو 12,000 روپے سالانہ اور پہلے قسط کے طور پر 6,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اہل افراد کی فہرست ان لوگوں کی تفصیلات کے ساتھ تیار کی جائے جنہوں نے بے زمین غریبوں کے لیے قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم میں کم از کم 20 دن کام کیا ہے اور روزگار کی ضمانت دینے والے کارکنوں کے آدھار کارڈ کو لنک کیا گیا۔ کلکٹر نے کہا کہ ریتو بھروسہ اسکیم کے لیے اہل افراد کی فہرست تیار کی جائے۔ کسی بھی حالت میں کاشت کے لیے موزوں زمینیں، ٹیلے، رہائش گاہوں والی دیگر زمینیں، وینچر، آبپاشی پروجیکٹس، تالابوں، نہروں کے لیے زمین کے حصول کے تحت لی گئی زمین، ریلوے لائنوں، سڑکوں کو فہرست میں شامل نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کاشت کے لیے موزوں زمینوں کی تفصیلات کے ساتھ ایک فہرست تیار کی جائے اور زرعی حکام کی جانب سے تیار کردہ فہرست کی فیلڈ سطح پر جانچ کی جائے۔
راشن کارڈ کے لیے درخواست دہندگان کی مکمل تفصیلات درج کی جائیں اور دیہی علاقوں میں رہنے والوں کی سالانہ آمدنی 1,50,000 روپے اور شہری علاقوں میں رہنے والوں کی 2 لاکھ روپے سے زیادہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ناموں کو حذف کرنا اور راشن کارڈ میں نئے ناموں کو شامل کرنا بھی ہوگا۔ سنکرانتی تعطیلات کے بعد طلبہ اور مسافر ضلع پہنچے، جس کی وجہ سے تمام بسوں میں مسافروں کا ہجوم دیکھا گیا۔ سنکرانتی کی تعطیلات کے لیے طلبہ اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ تعطیلات کے دوران رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ سنکرانتی کا تہوار شاندار طریقے سے منایا گیا۔ سنکرانتی کی تعطیلات کے بعد وہ ضلع ہیڈ کوارٹر واپس آ گئے۔ اس کے نتیجے میں تمام بسیں طلبہ اور مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور نظام آباد مین بس اسٹینڈ پر پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ ضلعی مرکز کے ملازمین اور طلبہ نے حیدرآباد کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں حیدرآباد جانے والی تمام بسیں مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ MIM چیف بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر MIM نظام آباد قائدین کی میئر نیتو کرن میونسپل کمشنر سے خصوصی ملاقات 18 جنوری 2025 کو منعقد ہونے والے کارپوریشن کے آخری اجلاس میں فٹ پاتھ تاجرین کو ماسٹر پلان یا سڑک کی توسیع سے قبل کاروبار سے نہ ہٹانے، سڑک کی توسیع یا ماسٹر پلان کے موقع پر مناسب متبادل مقام کی نشاندہی اور ہر ڈویژن کو 20-20 لاکھ کی منظوری کے لیے قرارداد منظور کرنے کے لیے نمائندگی تحریری یادداشت حوالے کی۔ میونسپل عملہ و ٹریفک پولیس کی جانب سے فٹ پاتھ تاجرین کے ساتھ اختیار کردہ رویے پر بھی ناراضگی کا اظہار۔ صدر مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر آج نظام آباد ٹاؤن مجلس صدر شکیل احمد فاضل کی قیادت میں مجلسی کارپوریٹرز نے میئر نیتو کرن شیکھر اور میونسپل کمشنر دلیپ کمار سے ملاقات کی اور انہیں ایک تحریری میمورنڈم پیش کیا۔ مجلس فلور لیڈر و کارپوریٹرز نے میئر نیتو کرن اور میونسپل کمشنر سے کہا کہ میونسپل کارپوریشن و محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے غریب تاجرین کو ہراسانی کے سلسلے کو بند کرتے ہوئے انہیں تحفظ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فٹ پاتھ پر اپنا کاروبار کرنے والے غریب تاجرین کو اطلاع دیے بغیر برخاست کر دیا جائے۔ مجلس فلور لیڈر شکیل احمد فاضل و کارپوریٹرز نے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 18 جنوری 2025 کو کونسل میٹنگ میں فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے تاجرین کو شہر میں ماسٹر پلان اور سڑک کی توسیع تک انہیں تحفظ فراہم کرتے ہوئے غریب تاجرین کو ہراساں نہ کیا جائے اور اسی مقام پر تاجروں کو کاروبار کرنے کی اجازت دیے جانے کا ٹیبل ایجنڈا لگا کر قرارداد منظور کرتے ہوئے تحریری نمائندگی کی گئی۔ علاوہ سے شہر کے بڑے اور کارپوریٹ ہاسپٹلز اور تجارتی مالز و شورومز کے پاس پارکنگ ایریا اور سہولتیں نہیں ہیں۔ باوجود اس کے ضلع انتظامیہ و محکمہ پولیس ٹریفک اور میونسپل عہدیداروں کی جانب سے ایسے مقامات پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ برخلاف اس کے فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے غریب تاجرین کو مسلسل ہراسانی کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر معمولی سی تجارت کے ذریعے اپنی اور اپنے افراد خاندان کی معاشی کفالت کرنے والے غریب فٹ پاتھ تاجرین کو برخاست کر کے انہیں معاشی بحران و مشکلات سے دوچار کیا جا رہا۔ علاوہ ازیں مجلس قائدین نے یہ بھی کہا کہ ڈویژن کی ترقی کے لیے ہر ڈویژن کو 10 لاکھ روپے منظور کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر مجلس شکیل احمد فاضل، کارپوریٹر ماجد صدیقی، میر ارشاد علی سمیر، علی باغبان، معتمد و کوآپشن ممبر شہباز احمد، نمائندہ کارپوریٹر اعجاز حسین، محمد ریاض احمد، عبدالسلیم، محمد مستحسن، سید رفیع الدین، کوآپشن ممبر ارشد پاشا، قائد مجلس خلیل احمد و دیگر بھی موجود تھے۔ صدر محترم جناب اسدالدین اویسی صاحب MP حیدرآباد کی ہدایت پر آج ہم نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں میئر صاحبہ سے اور کمشنر صاحب سے آج آ کے ملاقات کیے۔ ملاقات کرنے کی وجہ یہ 18 جنوری 2025 کو جو میونسپل کارپوریشن میں جو میٹنگ رکھی گئی، وینڈر خصوصاً فروٹ والے اور ترکاری والوں کے ساتھ میونسپل اسٹاف اور ٹریفک پولیس جس انداز میں پیش آئی تھی، وہ تمام واقعات، وہ تمام حالات کو ہم اسدالدین اویسی صاحب بلالے صاحب کے سامنے رکھے تھے۔ بہرحال وہ فٹ پاتھ والے اور وہاں کے اسٹریٹ وینڈرز اب تو خیر بحال ہیں، لیکن اس کے مستقل حل کے لیے ہم کو یہ ہدایت دی گئی کہ ایک ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے کہ یہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کی ان کا تحفظ ہو۔ اس وجہ سے اس چیز کو
एजेंडे में रखते हुए स्ट्रीट वेंडर खुसूसन, जिसमें फुटपाथ पे तरकारी बेचने वाले, छोटा मोटा कारोबार करने वाले, फ्रूट बेचने वाले, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। तो हम मजलिस MIM यूनिट ये एक एजेंडे में ये दरख्वास्त रखी कि ये स्ट्रीट वेंडर्स को डिस्टर्ब ना किया जाए, ताहाल जब तक कि मास्टर प्लान आकर रोड वाइंडिंग ना हो, क्योंकि निज़ामाबाद शहर में तमाम ही कास्ट के लोग, खुसूसन हमारे मुस्लिम और हिंदू तमाम भाई लोग, कुछ जो BPL है, सत्य गुर्बत से नीचे है, ये रोज़मर्रा कमा लेते हैं, 400-500 रुपये कमाते हैं, और कमोबेश 5000 के ऊपर ये तमाम ऐसे लोग हैं निज़ामाबाद में। इन सब को नज़र में रखते हुए MIM ये डिसाइड की, MIM निज़ामाबाद यूनिट, कि इनके लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एजेंडा पास किया जाए जिसमें इनको डिस्टर्ब ना किया जाए, और ये इसको एक शक्ल दिया जाए ताकि ये लोगों को फिर से ये म्युनिसिपल की तरफ से हो या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हो हरासानी ना करना पड़े। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हम प्रपोज़ल रखे हैं आने वाले काउंसिल में, इसको तमाम ही लोग एक जायज़ा लेते हुए इस पे अपना वोट साबित करेंगे और भारी ताकत से इसको पास करेंगे, क्योंकि ये गरीबों का मामला है और गरीबों के साथ मजलिस हर वक्त साथ रही है, आगे भी रहेगी। खुसूसन फुटपाथ पे भी कारोबार करने वाले और मेवा फरोश और दूसरे बहुत सारे कारोबार जो स्ट्रीट पे होते हैं, उनके लिए हमने ये कोशिश 18 तारीख का जो आखिरी मीटिंग, काउंसिल मीटिंग है, मीटिंग में हमने ये प्रपोज़ल दिया MIM यूनिट ने मेयर मैडम को और कमिश्नर साहब को कि कम से कम 20 लाख रुपए म्युनिसिपल फंड के तहत लगाया जाए, ताकि एक एक डिवीज़न में, ताकि जो भी बचे कुचे काम हैं उसकी तकमील हो सके और आवाम के लिए राहत पहुंच सके। तो हम उम्मीद करते हैं कमिश्नर साहब से भी और मेयर मैडम साहब से भी कि वो 20 लाख रुपए हमें आने वाले जो एजेंडे में मंजूरी देंगे। रैतू भरोसा गैर ज़रई ज़मीनों पर लागू नहीं। सर्वे टीम घर घर जाकर जामा तफसीलात जमा करेंगी, अवाम ताउन करें। डिचपल्ली तहसीलदार प्रभाकर का बयान। डिचपल्ली मंडल के तहत खिला डिचपल्ली गांव में जुमेरात को रैतू भरोसा और इंद्रमा घरेलू राशन कार्ड्स के मामले पर एक ग्राम सभा मुनाकिद हुई। इस ग्राम सभा में तहसीलदार प्रभाकर ने खिताब किया और अवाम को कई तजावीज़ दी। किसानों को मुतल्ला किया कि रैतू भरोसा चिकन फार्म, गेस्ट हाउस, वेंचर्स, नाला, ज़रई अराजी की तब्दीली के लिए लागू नहीं। उन्होंने कहा कि इस वक्त किसान की यकीन दहानी स्कीम सिर्फ उन लोगों पर लागू है जो ज़रई ज़मीन पर फसलें उगाते हैं, और कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं, उनके नए राशन कार्ड के लिए दरकार मुकम्मल तफसीलात, कार्डों पर नामों का इंदराज और बेघर गरीबों को इंद्रमा मकानात की ग्रांट की तफसीलात जमा की जा रही। अवाम से कहा कि वो सर्वे के अमले के साथ ताउन करें और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात फराहम करें। इस प्रोग्राम में मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर S माधुरी, किसान दीगर भी मौजूद थे। बाबापुर मुस्तकर पर वाक़े दरगाह हजरत खुतुब अब्दल सैयदना शेख बाबा नतर शाह अब्दल की उर्सु मुबारक का जोशो खरोश व अक़ीदत के साथ एहतमाम। बिला लिहाज मजहब ज़ायरीन ने दरगाह पर उर्स के मौके पर हाज़री दी और अक़ीदत की चादरें पेश की। औलियाए अल्लाह के आस्ताने फैज़ व बरक़ात हासिल करने का ज़रिया अक़ीदतमंदों का इजहार। भीमगल मंडल बाबापुर मुस्तकर में खुतुब अब्दल सैयदना शेख बाबा नतर शाह अब्दल पाव सैलाम का उर्स बड़े ही इज्जत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस उर्स में रियासत तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों से जुलूसे संदल में ज़ायरीन ने हजारों की तादाद में शिरकत की। तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने अक़ीदत व एहतराम के साथ दरगाह की ज़ियारत की। इस उर्स में आने वाले मेहमानों के लिए ताम का नज़्म रखा गया। इस मौके पर पुलिस का बंदोबस्त देखा गया। दरपली मंडल में हल्दी बोर्ड के क़याम पर बीजेपी कायदीन ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और कहा कि MP धर्मपुरी अरविंद की मेहनत रंग लाई। दरपली मंडल मुस्तकर में मरकज़ हुकूमत की जानिब से हल्दी बोर्ड के क़याम पर बीजेपी मंडल डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया। बाद बीजेपी लीडरों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, MP धर्मपुरी अरविंद
और बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी की तस्वीरों को दूध से साफ किया। उन्होंने किसानों से किए गए वादे के मुताबिक एमपी अरविंद और जिला सदर दिनेश कोलाचारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बीजेपी अपनी बात पर कायम रही। उन्होंने जिले के सीनियर लीडर पी गंगा रेड्डी नेशनल हल्दी बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर करने को खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन गंगा रेड्डी दीगर कायदीन मौजूद थे। ధర లేక చాలా మంది పసుపు పెట్టడమే మానేసిర్రు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు మన ఎంపీ అరవింద్ ధర్మపురి గారు పట్టుదలతోటి మన నరేంద్ర మోడీ దగ్గర ఈ ప్రస్తావన పెట్టి దీని గురించి చాలా కష్టపడి శ్రమపడి మా నిజామాబాద్కు ఈ పసుపు బోర్డు కంపల్సరీ కావాలా, రైతులు పసుపు పండిస్తున్నారు నష్టపోతున్నారు, మరి తగిన ధర వస్తలేదు, తగిన ధర రావాలి, మరి ఎటో సాంగ్లీ మహారాష్ట్ర అటు ఇటు తీసుకుపోవడానికి కూడా చాలా ఖర్చులు అవుతున్నాయి. మరి అట్లా కాకుండా మన నిజామాబాద్లోనే మనకు గిట్టుబాటు ధర రావాలని రైతులకు మేలు చేయడానికి కోసము పట్టుదలతోటి కృషితోటి తీసుకొచ్చినందుకు అరవింద్ అన్నకు ఈ పసుపు బోర్డు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి खेल तंदुरुस्त रहने के लिए जरूरी, खेलों से जहनी सुकून मिलता है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया और जीतने वालों को इनामात दिए गए। POW जिला सदर वी गोदावरी का बयान। शहर के कोट गली में संक्रांति त्यौहार के मौके पर प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन, तेलंगाना मदर सेविंग्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम रंगोली, म्यूजिकल चेयर व दीगर खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इन 4 मुकाबलों में 12 फातहीन का ऐलान किया गया और पहले, दूसरे और तीसरे इनामात का ऐलान किया गया। स्कूल जाने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पर म्यूजिकल चेयर का मुकाबला किया गया। कायदीन ने जीतने वालों को इनामात पेश की। इस मौके पर जिला सदर वी गोदावरी ने कहा कि खेल न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी जोश भी लाते हैं और उन्होंने कहा कि आज के दौर में खवातीन मर्दों के बराबर है और खवातीन के लिए मर्दों के तसल्लुत वाले मुआशरे में अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अपने हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना ही वाहिद रास्ता है। TUCI रियासती सदर वी कृष्णा ने कम से कम उजरत की मुशावरती कमेटी की तश्कील नौ का किया मुतालिबा और कहा कि हुकूमत गैर मुनज़्ज़म शोबों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक फलाही बोर्ड कायम करे। ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया की जिले एग्जीक्यूटिव मीटिंग शहर के श्रमिका भवन में मुनाक़िद हुई। इस मीटिंग में मरकजी और रियासती हुकूमतों की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों और मजदूर के फ़राइज़ पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर TUCI रियासती सदर और सेक्रेटरी वी कृष्णा ने कहा कि मेहनत कश तबके का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम ट्रेड यूनियनों की नुमाइंदगी के साथ कम अज़ कम उजरत के एडवाइजरी बोर्ड को तब्दील करे और सिर्फ एक हुकूमत यूनियन की नुमाइंदगी करना मजदूरों के साथ गद्दारी होगी। उन्होंने मुतालिबा किया कि कम अज़ कम उजरत के एडवाइजरी बोर्ड की फौरी तश्कील की जाए। ऑटो, मोटर और पोर्टर्स जैसे गैर मुनज़्ज़म शोबों के मजदूरों के लिए एक फलाही बोर्ड कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मजदूर क़वानीन को मनसूख करे और कॉरपोरेट हामी क़वानीन मुतारिफ करे। रेवंत रेड्डी हुकूमत भी मजदूरों के लिए कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद ना करके मजदूरों का इस्तेहसाल करे। उन्होंने मुतालिबा किया कि मजदूरों के तमाम शोबों के लिए उजरतों का साइंसी तौर पर तयन और इस पर अमल दरामद किया जाए। इस मीटिंग में TUCI रियासती नायब सदर M नरेंद्र, जिला सदर, जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर दीगर भी मौजूद थे। ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 2016 నుంచి 4000 రూపాయలకు పెంచి అధికారంలోకి రాగానే అమలు చేస్తామని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడి సంవత్సరం దాటినా ఇప్పటి వరకు అమలు చేసినటువంటి పాపాన పోలే. అంతేకాదు కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కింద పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులకు కానీ లేదా కనీస వేతనాల షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి 73 రంగాలకు చెందినటువంటి కార్మికుల యొక్క కనీస వేతనాలను నిర్ణయించి జీవోలను కూడా విడుదల చేస్తాం. గత ప్రభుత్వం అన్యాయం చేసిందని చెప్పినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి సంవత్సరం దాటినప్పటికి కూడా కనీస వేతనాల సవరణ దిక్కులేనటువంటి స్థితి ఉంది. కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికుల జీతభత్యాలు 26,000కు పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దాన్ని కూడా పెంచకుండా మొండిగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి స్థితి ఉంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా జిల్లా కమిటీ చర్చించి కార్యక్రమాన్ని రూపొందించుకోబోతుంది. కనుక ఈ సందర్భంగా
जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मैदानी सतह पर सिरकुंडा, दरपल्ली व दिगर मंडलों का किया दौरा। फील्ड लेवल ऑब्जर्वेशन में जामा तफसीलात जमा करने की ओहदेदारान और सर्वे टीमों को दी हिदायत। सिरकुंडा मंडल मुस्तफर के अलावा पेदावालगोट, दरपल्ली के तहत दुबका, खनमबंडा, तांडा, मैलाराम और दिगर देहातों में रैतु भरोसा, इंद्रमा मकान और राशन कार्ड जारी करने के अहल अफराद की फहरिस्त की तैयारी के लिए फील्ड तस्दीकी अमल किया जा रहा है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अमले को मशवरा दिया कि वो जामा तफसीलात जमा करने और आधार कार्ड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस और सामाजिक व इक्तिसादी सर्वे की तफसीलात के साथ फील्ड लेवल मुशाहिदती तफसीलात की तस्दीक करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रहनुमा खतूत पर अमल करें। रैतु भरोसा स्कीम के सिलसिले में नाले की तब्दीली, हुसूल अराजी, लेआउट, बेकार जमीनों और गैर काश्त की जाने वाली जमीनों के सर्वे नंबरों से जांच की जाए। भूभारती पोर्टल और गूगल मैप्स की बुनियाद पर असल तफसीलात का पता लगाया जाए और मुतल्लिका पोर्टल पर अपलोड किया जाए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि नए राशन कार्ड के लिए अहल खानदानों की शनाख्त करते वक्त पुराने कार्ड में कुंबे के अफराद के नाम के बगैर मुकम्मल जांच पड़ताल की जानी चाहिए। कलेक्टर ने दरख्वास्त दहिंदगान के खानदान के तमाम अफराद की तफसीलात जमा करने का हुक्म दिया, क्योंकि राशन कार्ड में नए नाम शामिल किए जाने। उन्होंने मंडल सतह पर तमाम गाँव में सर्वे मुकम्मल करने का हुक्म दिया और डिवीजन की सतह पर आरडीओस को हुक्म दिया कि वो वक्तन फौक्तन फील्ड लेवल ऑब्जर्वेशन टीमों की कारकर्दगी की निगरानी करें। इस मौके पर निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, सिरकुंडा मंडल स्पेशल ऑफिसर एमपीडीओ मनोहर रेड्डी, सिरकुंडा तहसीलदार रविंदर, दरपल्ली तहसीलदार दीगर भी कलेक्टर के दौरे पर मौजूद थे। కాదు మీరు వెళ్ళి ఫీల్డ్లో వెరిఫై చేసిన తర్వాతే మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. మనం సర్వీస్ అప్పుడు అందుకొని పైసలు కట్టించాం. ఇంకా పక్క పట్టిన తర్వాత పంట పండుతుంది. అదే అంటున్నాను. ఆ ప్లాన్లో ఇల్లు కానీ ఇట్లాంటివి ఒకటే షేడ్లు కానీ మిగిలింది చుట్టూ కూడా ఆ సర్వే నెంబర్ మొత్తం అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. हल्दी बोर्ड के क़याम पर किसानों ने खुशी का इजहार किया और हल्दी किसानों ने शहर के कई चौराहों पर एमपी अरविंद के फ्लेक्स लगाए। हल्दी बोर्ड के लिए दहाइयों से इंतजार करने वाले किसानों का ख्वाब पूरा हो गया। हल्दी किसानों ने एमपी धर्मपुरी अरविंद का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हल्दी बोर्ड लाने पर इसरार किया, जिसका किसान कई सालों से इंतजार कर रहे थे। एमपी धर्मपुरी अरविंद का शुक्रिया अदा करने के लिए निजामाबाद शहर के अहम चौकों पर हल्दी किसान की जानिब से लगाई गई फ्लैक्सी मौजूद बहस बन गई। 2019 के इंतखाबात में एमपी उम्मीदवार के तौर पर लड़ने वाले धर्मपुरी अरविंद ने बॉन्ड पेपर पर लिखा था कि वो हल्दी बोर्ड लाएंगे। इसके बाद से एमपी ने इसरार किया और हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए मरकजी वुज़रा से बातचीत की। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी ने निजामाबाद में मुनक़िदा जलसे-ए-आम में अपनी तकरीर में ऐलान किया कि हल्दी बोर्ड लगाया जाएगा। आखिरकार एमपी धर्मपुरी अरविंद हल्दी बोर्ड लाने में कामयाब हो गए। चाहे कितनी ही हुकूमतें बदले, जिले के किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। हल्दी किसानों ने बताया कि ये बात काबिले जिक्र है कि सियासत में कई लीडर देखे, लेकिन अरविंद जैसा जिद्दी लीडर कभी नहीं देखे। वैसे भी जब एमपी अरविंद ने हल्दी बोर्ड लाया तो अरविंद ने एक बार फिर इन अपोजिशन लीडरों के मुंह बंद करके सियासी तौर पर अपनी गिरफ्त साबित कर दी, जो हर असेंबली में इन पर इल्जामात लगा रहे थे। నిజామాబాద్కి పసుపు బోర్డుకు అత్యవసరం అని దాని గురించి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇందూరులో ప్రకటన చేయడం జరిగింది. అరవింద్ గారు అదేవిధంగా గతంలో ఆయన బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చి ఖచ్చితంగా నేను పసుపు బోర్డు నిజామాబాద్కి తీసుకొస్తానని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆయన మాట ప్రకారం పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలాగా పసుపు బోర్డును తీసుకొని రావడం జరిగింది. దానికి ఇందూరు ప్రజల పక్షాన పసుపు బోర్డు ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ సంక్రాంతి కానుకగా మాకు ఇందూరులో పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయడం అనేది అందరికీ ఆనందోత్సవాలకు గురి చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మోడీ గారికి అలాగే అరవింద్ గారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అదే కాకుండా ఆరుమూరు అంకాపూర్ గ్రామానికి చెందినటువంటి పల్లె గంగారెడ్డి గారిని, ఆయన రైతు పక్షపాతి నిరంతర శ్రామికుడైనటువంటి అంకాపూర్ ముద్దుబిడ్డ ఈ పల్లె గంగారెడ్డి గారిని ఆయన చైర్మన్గా నియమించడము మా అందరికీ ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది, ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. కాబట్టి ఆరుమూరు రైతుల పక్షాన నరేంద్ర మోడీ గారికి దీనికి నిరంతరంగా इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
रियासती हुकूमत की फलाई स्कीमात से मुस्तैक अवाम को मुस्तफिद कराने के लिए फील्ड ओहदेदार हुकूमत के रहनुमायाना खुतूत की पाबंदी करे और मुस्तैकिन को फायदा पहुंचाए। जिला कलेक्टर हनुमंत छुट्टियां खत्म, चलो काम पर। संक्रांति त्योहार की तातीलात का अख्ताम, तलबा व मुलाजमीन का बसों में हुजूम। हमेशा की तरह इस बार भी आरटीसी को खतीर आमदनी का इम्कान। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटर्स की मियाद 25 जनवरी को खत्म। 18 जनवरी को कॉर्पोरेशन का आखिरी इजलास। फुटपाथ ताजिरान को मास्टर प्लान या सड़क की तोसी के बगैर मौजूद मकामात से बर्खास्त न करने और हर डिवीजन को 20 लाख की मंजूरी, करारदाद मंजूर की जाए। एमआईएम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़े गुलाम चौराहा, नस्ल, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।